these C++ tutorials. We are going to learn about the C++ programming language from the very basics to the industry level. This course has been designed in a way to nurture the beginners setting their feet in this discipline, so tighten your belts and enjoy the ride. Before starting, let me explain to you the difference between this and any other source for learning C++. First, this is a whole complete package in itself covering from A to Z of the language. Number 2, no redundancy and monotonicity. Number 3, beginner friendly, hence easy to learn. Number 4, no prerequisites, just a zeal for learning to start with. I will covering these things in today's tutorial. Number 5, what is programming and why C++? Installation of Visual Studio Code, installation of G++, writing our first program and executing it. So first of all, I tell you what is programming language and why C++. Okay. Programming can be understood as your instructions to the computer machine to solve real problems. The very basic principle of creating machines was to make life simpler and machines. Okay. All our instructions has been able to do the same, but the distance between what we say and what the machine understands gets aggregated by a programming language. This marks the importance of learning a programming language. A programming language helps us to communicate with the computer, analogs to us humans who need some language, be it English, Urdu, or Bangla, to talk our people. Computers to need a language to converse. Just to name a few, there is C++ or C, Python, Java, or etc. Okay. Now when we start listening the names of these programming language, the question which instantly arises is why C++, despite the begin on 82nd programming language. It never lost its sheen. C++ was an added version of C developed by Badger, and okay, it is believed to be very close to the hardware, making it comparatively easy for programmers to give instructions directly to the system without any intermediary. Another reason for C++ to be one of the used language and its object-orientedness. C++ is an object-oriented programming language, giving it the power to create real-world software systems. You don't have to worry much about these terms, which, believe me, only sound complex and really. Just sit back and dive with me in this plethora of knowledge. So let's dive in. So चले अब हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक सोर्स कोड एडिटर है जो आपको प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है आपके माइक्रोसॉफ्ट को। बिलो इज द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली ऑफिशियल डाउनलोड के पेज पे चले जाने VS कोड के। कैसे जाएंगे, कैसे सब कुछ करेंगे अभी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पे चले जाना है। आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे आप लिख दोगे विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे आपका पहले लिंक आ जाएगा, आप फॉरन ऑफिशियली पेज पे पहुंच जाओगे। अब हमें क्या करना है, डाउनलोड द VS कोड अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेशन सिस्टम इन यूज। आई विल बी डाउनलोडिंग इट फॉर विंडोज 10। इसका मतलब है आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप सोल्ड भी मैक पे हो तो आप मैक पे करो, अगर आप लिनक्स पे हो तो लिनक्स पे करोगे, अगर आप विंडोज पे हो तो विंडोज पे करोगे। मैं अभी फिलहाल विंडोज 10 पे हूं तो मैं विंडोज 10 पे कर लूंगा, और मेरा पहले से ही डाउनलोड हुआ है तो मुझे वापस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे
वंस द डाउनलोडिंग इज कंप्लीट, जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको इंस्टॉल करना है VS कोड ऑन योर सिस्टम लाइक एनी अदर एप्लीकेशन। अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे ऑफ G++। अगर किसी को नहीं पता G++ है क्या, मैं उसको बता देता हूँ। G++ कंपाइलर है, तो आपको हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, वो भी इनटू अ .exe फाइल में। बिलो इज द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग G++। स्टेप 1 है कि गो टू द गूगल एंड सर्च min.gw install and click the min.gw link as shown in the image below। अब कैसे सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको min.gw को लिख देना अपने किस पे, गूगल पे। जैसे ही आप यहाँ पे ये लिख दोगे, आपने यहाँ पे लिख देना है इंस्टॉल। आपके पास ये पहला लिंक आ जाएगा, इधर आपको दबा देना है। जैसे ही दबा दोगे यहाँ पे आपको डाउनलोड को दबा देना है। अब ये आपका 4 3 2 1 अब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं अब आपको करना क्या है। स्टेप 2, क्लिक ऑन टू डाउनलोड बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर मेन्यू। हमने पहले से डाउनलोड कर लिए। ओके, आफ्टर डाउनलोड ओपन द प्रोग्राम एंड क्लिक कंटिन्यू टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आपको अपने प्रोग्राम को क्लिक करना है, फिर रन को दबाना है, फिर इंस्टॉल को दबाना है, फिर कंटिन्यू को दबा देना है। आपकी मर्जी, आप कहां पे अपनी सेव करना चाह रहे हो, ये आपकी चॉइस है। कंटिन्यू, रन नाउ। अब यहाँ पे हमारा रन हुआ तो हमारे पास कुछ इस तरीके के कुछ ऑप्शन आ गए। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको सेकंड आफ्टर फिनिशिंग स्टेप 5 क्लोज द प्रोग्राम एंड ओपन C ड्राइव। ओके, सबसे पहले लेकिन आपको यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे आपने दूसरे वाले को क्लिक कर देना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। अब बस, और यहाँ पे आपने इधर दबा के इंस्टॉलेशन अपडेट कैंसिल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको दबा के यहाँ पे आपको लिख देना अपडेट करने, रिव्यू चेंजेस, अप्लाई। अब यहाँ पे हमारा हो रहा है। ओके, तो नाउ जब हमारा इतना हो जाए, आप सबने इतना कर लिया, तो अब मैं आपको बताता हूं अब आपने करना क्या है। सिंपली एस आफ्टर जब भी हो गया तो अब हम करेंगे राइटिंग अवर फर्स्ट प्रोग्राम एंड एक्सिक्यूटिंग करेंगे उसको। ओके, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट करना होगा अवर फर्स्ट प्रोग्राम, और हमें नीड चाहिए होगी विजुअल स्टूडियो कोड की, विच इज अ सोर्स कोड एडिटर, जो एक सोर्स कोड एडिटर है। तो क्रिएट अ फोल्डर एंड देन राइट क्लिक इनसाइड द फोल्डर एंड क्लिक ऑन ओपन विद कोड एज शोन बिलो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं, आपने सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेना है। आप जैसे अपना विजुअल स्टूडियो कोड जहां से खोल लो, अब मैं आपको बताता हूँ अब आपने करना क्या है। यहाँ पे जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाए, सिंपली एज फॉलोइंग दिस स्टेप विल ओपन योर विजुअल स्टूडियो कोड। जो आप मैं स्टेप बता रहा हूँ आप फॉलो करोगे तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा और फोल्डर एज कॉन्टेक्स्ट। आफ्टर ओपनिंग द VS कोड आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने थोड़े से एक्सटेंशंस। गो टू द एक्सटेंशन मेन्यू एंड सर्च C and C++। एक्सटेंशंस क्या होते हैं ये भी अभी मैं बताता हूँ। एक्सटेंशन यहाँ पे आपको C लिख देना है, बस आपका यह एक्सटेंशन आ जाएगा C++ का। मेरा पहले से ही डाउनलोड है, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, बस आपको वो दबा देना, आपको ऑटोमेटिकली फौरन डाउनलोड हो जाएगा। अब जब ये आपका डाउनलोड हो जाए, show you this extension C++ as well as other extensions we add। और हम थोड़े से और एक्सटेंशन ऐड करेंगे, make our life easy, ताकि हमारी जो लाइफ है C++ की जो ट्यूटोरियल हो सब आसान हो जाए। While learning C++ हमें क्लिक करना है इंस्टॉल बटन और फिर start installing the extension for you as shown in the image below। This extension, ये एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगा राइटिंग कोड में थ्रू फीचर्स जैसे कि ऑटो कंप्लीट और या फिर ऑटो ड्रॉप डाउन सजेशन। चलो अब इंस्टॉल करते हैं एक और एक्सटेंशन जो हेल्प करेगा आपके रन प्रोग्राम को क्विकली, मतलब आपको जो प्रोग्राम आप जो भी लिखोगे ना वो बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। तो गो टू द एक्सटेंशन टैब और फिर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सर्च कर देना है कोड रनर। आफ्टर दैट क्लिक ऑन इंस्टॉल कोड रनर। यहाँ पे हम जाएंगे एक्सटेंशंस कोड रनर, यहाँ पे आ गया। ये भी मेरा पहले से डाउनलोड है, आपको बस इंस्टॉल पे दबा देना, आपको फौरन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा।
नाउ हमें अब क्रिएट करना है अपने भी एक प्रोग्राम फाइल और स्टार्ट राइटिंग करना है अपने कोड को, वो भी क्रिएट अ प्रोग्राम फाइल। तो हमें सबसे पहले गो फाइल मेन्यू में जाना होगा, फिर हमें क्लिक करना होगा फाइल बटन को और फिर शो इन द इमेज बिलो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कैसे फाइल बनाते हैं। यहाँ पे आपको दबा देना है, फाइल पे दबाना है, फिर आपको न्यू फाइल पे दबाना है और फिर यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे कि मैंने लिखा न्यू डॉट टीपीपी और फिर यहाँ पे आपको क्रिएट कर देनी है अपनी फाइल। अब हमने टीपीपी क्यों लिखा, टीपीपी आफ्टर क्लिकिंग ऑन द बटन फाइल इट विल आस्क यू फॉर द फाइल नेम, ये आपसे पूछेगा अपने फाइल नाम दो। तो हमने गिव कर दिया नेम, जैसे कि अभी मैंने दे दिया, यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 है लेकिन हमने दे दिया न्यू डॉट टीपीपी एंड प्रेस एंटर। तो अब एक कोड जो है फाइल करने क्रिएटेड और स्टार्ट राइटिंग करना अपना प्रोग्राम को। अब हमें अपने कोड लिखना शुरू कर देना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने शायद यहाँ पे हमें जाना है, इसको हटाना है, यहाँ पे इसको इरेज न्यू डॉट cpp एंटर। और डेस्कटॉप पे मैंने अपनी फाइल बना दी है, अगर आप चाहो कहीं और पे भी बना दो, मैंने लेकिन फिलहाल डेस्कटॉप पे बना दी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, मैं आपको सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि अब सी में नहीं लिखते इंक्लूड, आपने यहाँ पे लिखना है इंक्लूड और यहाँ पे हम लिखेंगे iOS स्ट्रीम। क्या लिखेंगे, iOS स्ट्रीम। ये हमने क्यों लिखा ये सब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ये होते हैं इसके स्टार्टिंग कोड, किसके, C++ के स्टार्टिंग कोड। आप कुछ भी लिख रहे हो उसके अंदर, लेकिन आप C++ के स्टार्टिंग कोड नहीं लिख रहे तो आपके जो कोड हैं वो कभी भी रन नहीं होंगे, क्योंकि हर C हो या C++ उसको उसके C हो या C++ हो, आपको उसके पहले सबसे पहले उसके स्टार्टिंग कोड लिखने ही होते हैं। स्टार्टिंग कोड लिखना सबसे बहुत जरूरी है। अब जब हमने ये सब लिख लिया तो इन आज के ट्यूटोरियल में हमने लर्न एनीथिंग अबाउट व्हाट इज कोड, इट्स ऑल अबाउट, बट हमने लर्न किए दीज थिंग, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और अपकमिंग जो वीडियोस आएंगी ना, जो अभी अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे हमारे, हम एक्सिक्यूट करेंगे कोड को, प्रेस करेंगे रन बटन को जो शोन इन द इमेज अबव एंड इट विल गिव यू द आउटपुट एज शोन इन द इमेज बिलो। तो थैंक यू फ्रेंड्स। एंड अब ये आपका हेलो वर्ड आएगा कैसे आउटपुट में, आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है, यहाँ पे दबाना है और यहाँ पे आपने इजिली ऐसे रन कर देना है और यहाँ पे आपका बिल्ड फिनिश और यहाँ पे आपका फॉरन इजी से आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा सिंपली से। ओके, बट आपको यहाँ से ऐसे करके रन कर देना है कोड, आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा सिंपल। ये देखिए मेरा आ गया, ये देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टार्टिंग टू लर्न C++ विद मी। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैवंट चेक आउट द होल प्लेलिस्ट येट, तो आपको मूव करना है टू कोड पीके चैनल्स टू द RBK ग्राफिक और माय यूट्यूब चैनल टू एक्सेड इट। आई होप यू एंजॉयड इट। तो आज अगले ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि टॉकिंग मोर अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ C++। हम आगे की वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, वो भी C++ के प्रोग्राम के। सो सी यू देयर, so till then keep coding. Okay, so I hope you can enjoy this class. If you enjoy, so please like, share and subscribe and hit the bell icon first. Okay, so now I meet you next class in next very amazing class. So for today, goodbye.